Hello बच्चों, I'm Amit Singh and I welcome you all at Arise a Talent. Today I am starting with a very important chapter of mechanics, that is motion in one dimension. Usually people call it kinematics, so it is the first part of kinematics, which is motion in one dimension. So kinematics, that's the heading. Now everybody is having introduction, so this chapter is also having introduction. That is why, what is kinematics? Now kinematics is a branch of mechanics in which we have to discuss or describe the motion of the particle. We have to discuss or describe the motion of the particle without knowing the cause of motion. That means in this chapter, we will not discuss why the body is performing motion. That is, we will not discuss about force or torque. As you all know, that force and torque are the two factors which are responsible for the motion of the particle. So, in this chapter, kinematics, we will not discuss the cause of motion, we will only discuss the motion. Now, what is meant by the term? We are discussing the motion of the particle. For example, you are standing at the balcony and you observed a very beautiful girl, let's suppose for 10 seconds. Now, if in that 10 seconds you are able to tell me that how much is the distance or displacement traveled by that girl, what is the speed or velocity of that girl, the girl is accelerating, that is speeding up, or retarding, that is speeding down. If you are able to tell me all about all these parameters like distance, displacement, speed, velocity and acceleration, that means you described the motion of the particle. That is, here particle means that girl, okay, no, that beautiful girl. So in this chapter we will discuss the parameters involved in the motion of the particle, okay, not the cause of motion. So it is clear that the first point of the kinematics, what we are going to do is we are going to discuss or describe the motion of the particle without knowing the cause of motion. Now the second is rest and motion. So मेरे बच्चों, it is clear that kinematics में करना क्या है? We have to discuss or describe the motion of the particle. So if we have to discuss the motion of the particle, it should be known to us that whether the particle is performing motion or not. So rest and motion. But these are two relative terms. There is no meaning of absolute rest or absolute motion. They are relative. Now a body is at rest or motion, it depends on the observer कि देख कौन रहा है. For example, मुझसे पूछा जाए कि आप लोग रेस्ट पर हैं या मोशन में हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि आप बैठे हुए हैं और मुझको देख रहे हैं, तो बैठे हुए हैं, तो बैठना क्या इंडिकेट करेगा? रेस्ट को. नाउ फॉर एग्जांपल, एन ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट मून, और वो आपको देख रहा है, तो वी आर एट अर्थ एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, सो अर्थ इज परफॉर्मिंग मोशन. सो उनके अकॉर्डिंग आप किस पर हैं? मोशन में. दैट मीन्स साइमल्टेनियसली एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट और मोशन. साइमल्टेनियसली मीन्स मेरे लिए आप रेस्ट पर हैं, पर बच्चों वो जो ऑब्जर्वर मून पर है उनके लिए आप सेम टाइम पर मोशन में हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. ट्रेन में हम सभी ने ट्रैवल किया हुआ है. ट्रेन में अगर कोई जगह खाली होती है तो हम क्या कहते हैं? आइए यहां पर बैठ जाइए. ये बैठ जाना किसको इंडिकेट करता है? रेस्ट को या मोशन को? बताओ, रेस्ट को या मोशन को? रेस्ट को. अब उसी ट्रेन को दो फ्रेंड बाहर से देख रहे हैं और एक दूसरे को कह रहा है देखो यार ट्रेन कितना तेज जा रही है. जा रही है किसको इंडिकेट कर रहा है? रेस्ट को या मोशन को? मोशन को. दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट और मोशन साइमल्टेनियसली. अब वो रेस्ट पर या मोशन पर है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा ऑब्जर्वर. ठीक है. डोंट यू थिंक दैट इट इज अ प्रॉब्लम? अगर मैं आपको थोड़ी देर बाद, जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, तो मैं आपको बताऊंगा कि अब पार्टिकल इज मूविंग विद दिस मच स्पीड, तो आप कोई ना कोई ऑब्जर्वर ऐसा ढूंढ ही लाओगे जिसके रेस्पेक्ट में वो जो मेरा पार्टिकल है वो रेस्ट में होगा. ठीक है, इट्स अ प्रॉब्लम. सो इसको दूर करने के लिए विल टेक अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Now बच्चों, this frame of reference, it's a combination of three mutually perpendicular axes. This is x, this is y, this is z. But so this dotted line
is that it is coming out of the plane, out of the board. मतलब the z is like this, like this, like this. This is x, this is y, and this is z. Z is coming towards you. ठीक है? And this is the origin. Now this is the frame of reference. If any particle changes its position with respect to this frame, then we'll say that it is in motion, otherwise at rest. अगर एक पार्टिकल ए पर है और वो ए पर ही रहता है कुछ टाइम बाद भी, देन विल से दैट इट इज एट रेस्ट, क्योंकि इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब आप ये बात नहीं करेंगे, आप मेरी बात नहीं करेंगे, मून की बात नहीं करेंगे, आप ट्रेन के अंदर की बात नहीं करेंगे, ट्रेन के बाहर की बात नहीं करेंगे, आप किसकी बात करेंगे? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की. ओके, सो इफ अ पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, देन इट इज सेट टू बी एट मोशन, अदरवाइज एट रेस्ट. क्लियर? ठीक है बच्चों, एक बात और, it is no rule that this will always be x, this will always be y, this will always be z. It depends on you कि आप कौन सा x, कौन सा y, कौन सा z लेना चाहते हो. The only rule is all three should be mutually perpendicular. ठीक है? You can take this y, ये भी y हो सकता है, ये z हो सकता है, ये x हो सकता है. ठीक है? एक और चीज, you can translate or rotate this Cartesian coordinate. ठीक है? ट्रांसलेट भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है. ट्रांसलेट करते करते रोटेट भी कर सकता है. आपको ध्यान कर रखना है, ऑल थ्री शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ओके, सो मेरे ख्याल से इट इज क्लियर कि काइनेमैटिक्स में करने क्या वाले हैं हम. ओके, सेकंड इज व्हाट इज मेंट बाय टर्म रेस्ट एंड मोशन. रिलेटिव डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर. उसको दूर करने के लिए हमने क्या कर लिया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया. ओके, नाउ द फोर्थ इज टाइप्स ऑफ मोशन. बच्चों काइनेमैटिक्स में टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज वन डायमेंशनल मोशन और 1D मोशन, जो कि हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, वन डायमेंशनल मोशन. सो व्हाट वन डायमेंशनल मोशन इज? बच्चों, इफ द पार्टिकल चेंजेस ओनली वन कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग द मोशन, ओनली वन कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग द मोशन, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन. सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो, दैट मीन्स सिर्फ x x x डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ y y y डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ z z डायरेक्शन में जा रहा है, देन इट इज सेट टू बी वन डायमेंशनल मोशन. चलो एग्जांपल बताओ कोई एक वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल. सोचा कुछ? इट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. एक पार्टिकल बच्चों बस सीधा 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 एक ही लाइन पे जा रहा है, देन इट इज वन डायमेंशनल मोशन. ठीक है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है सभी के. सेकेंड इज 2D motion, two dimensional motion. But that is motion in a plane. Motion in a plane. That means the motion in which two coordinate changes. Two coordinate changes. X Y change हो रहा है, Y Z change हो रहा है, Z X change हो रहा है. तो motion in a plane. ना बच्चों plane क्या होता है? Plane. Plane is a combination of two axes. जैसे अपन typically ये लेते हैं x और ये y, ये x और ये y. Then this is XY plane, XY plane. Okay. This is Y, this is Z. So this is YZ प्लेन. ये वाला जो वॉल है ना मेरे इधर, जो आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है, दिस इज YZ प्लेन. दिस इज x, दिस इज Z. ठीक है, दिख रहा है ना? दिस इज x एंड दिस इज Z. तो बच्चों द प्लेन, द फ्लोर ऑन विच आई एम स्टैंडिंग इज XZ प्लेन. समझ में आया प्लेन? बच्चों दिस इज XY प्लेन, दिस बोर्ड इज XY प्लेन. ठीक है, दिस इज Y, दिस इज Z, दिस इज YZ प्लेन, दिस X, दिस इज Z, दिस इज XZ प्लेन. ओके, ठीक है. सो इफ ड्यूरिंग द मोशन टू कोऑर्डिनेट चेंजेस, then it is said to be two dimensional motion. कोई एग्जांपल 2D मोशन का? कोई एग्जांपल? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हमारा काइनेमैटिक्स में नेक्स्ट आर्टिकल होगा जब वन डायमेंशन कंप्लीट कर लेंगे तब. प्रोजेक्टाइल मोशन यूजुअली हर साल हर एंट्रेंस में एक न्यूमेरिकल इससे आता ही आता है. अनदर इज सर्कुलर मोशन. ठीक है, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन. दोनों इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में पढ़ेंगे अपन. टाइप्स ऑफ मोशन में जो 1D मोशन हो गया, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो. 2D मोशन, दैट इज मोशन इन प्लेन इन विच टू कोऑर्डिनेट चेंजेस. एग्जांपल इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन. सी इज 3D मोशन. 3D मोशन क्या होता होगा बच्चों? कितने कोऑर्डिनेट चेंज होते होंगे? तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते होंगे, एक्स भी, वाई भी और जेड भी. ठीक है, दैट इज मोशन इन स्पेस. नाउ बच्चों स्पेस वो नहीं होता, वो स्पेस मतलब वो ही स्पेस नहीं होता है. कोई भी बच्चों, आपका रूम भी स्पेस का ही पार्ट है. एनी 3 डायमेंशनल एम्बियंस, दैट इज द स्पेस अवेलेबल, दैट इज स्पेस अवेलेबल इन ऑल द डायमेंशन.
कैन बी द पार्ट ऑफ स्पेस और 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, सोचो 3 डायमेंशनल मोशन। बच्चों आसपास आपने ना जाने कितने 3 डायमेंशनल मोशन देखे हुए हैं, जैसे रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल सुना सुना सा लगा होगा, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैं डिटेल में बताऊंगा अभी आपको। रैंडम का मतलब क्या होता है बच्चों, रैंडम दैट इज कोई भी, कहीं भी और कभी भी। अभी गैस का एक मॉलिक्यूल यहां पर है, नेक्स्ट मोमेंट कहां जाएगा पता नहीं कहां जाएगा, ठीक है। सो दैट इज रैंडम मोशन, एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा और जेड में भी जाएगा, तो इट इज 3 डायमेंशनल मोशन, क्लियर। So that's all about the introduction of kinematics. ठीक है, kinematics discuss or describe the motion of the particle, rest in motion, frame of reference, frame of reference, frame of reference, and types of motion, 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension. Now बच्चों, now we are starting with the discussion or discussion of the motion of the particle. मतलब that means we are going to describe the motion of the particle. So the second article is distance and displacement. Now the first point, with the distance and displacement. So what distance is? Distance. ना जाने बचपन में कब से distance सुन रहे हैं, distance. So distance is length of the actual path traveled. I'm writing it. Length of actual path traveled by particle. ठीक है बच्चों, if you are writing along with me, then underline this actual path. पार्टिकल एक्चुअल जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है ना बच्चों, पार्टिकल एक्चुअल में जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, द लेंथ ऑफ दैट पाथ इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। प्लीज अंडरलाइन द टर्म शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन इज डिस्प्लेसमेंट। इसको समझ लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। ये डिस्टेंस क्लियर है ना बच्चों, पार्टिकल एक्चुअल में जिस पाथ के अलोंग ट्रैवल कर रहा है उस पाथ का लेंथ इज डिस्टेंस, while the displacement is the shortest distance between initial and the final position. For example, you are initially at A and finally at B, and you travel A to B along this path, ठीक है। तो बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं। तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, द आर्क लेंथ ऑफ ए बी। आर्क लेंथ मतलब इस आर्क की लंबाई, द लेंथ ऑफ दिस आर्क इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। व्हाइल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर इज व्हाट, वेक्टर इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पूछा जाए तो क्या करें, इनिशियल को फाइनल से स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, इनिशियल को फाइनल पोजीशन से बच्चों स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, लाइक दिस। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज ए बी वेक्टर। मेरे बच्चों दिस इज आर्क, दिस इज नॉट वेक्टर, दिस इज आर्क एंड दिस इज वेक्टर, वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, ओके। दैट मीन्स इस वाले एग्जाम्पल से क्लियर होना चाहिए कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट जिसके अलोंग है, पार्टिकल उस पाथ के अलोंग ट्रैवल करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पार्टिकल ने किसके अलोंग ट्रैवल किया, पार्टिकल ने तो बच्चों इस आर्क के अलोंग ट्रैवल किया, पर डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग है, ठीक है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है पार्टिकल उस डायरेक्शन में चला, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ओके फाइन। सो डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, while displacement is the shortest distance between initial and the final position, and its direction is from initial to final. Distance is scalar quantity while displacement is a vector quantity, ठीक है। Now the third point, मैं ये पुराना वाला रब कर देता हूं।
बच्चों थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ए टू बी, ए से स्टार्ट होना है, बी पर पहुंचना है। पहले दिन एक भाई साहब स्टार्ट हुए और वो ए टू बी इस वाले पाथ के अलॉन्ग पहुंचे। सेकेंड डे वो इस वाले पाथ के अलॉन्ग पहुंचे। थर्ड डे बच्चों उनमें दिमाग आ गया और वो सीधे चले गए। ठीक है, अब ये बताओ इन तीनों में से आउट ऑफ दीज 3 डेज ऑन विच डे द मेन ट्रैवल मैक्सिमम डिस्टेंस, सबसे ज्यादा डिस्टेंस उन्होंने कौन से वाले दिन ट्रैवल किया? सो इट इज एविडेंट फ्रॉम द फिगर। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा लेंथ कौन से वाले पाथ का दिख रहा है? फर्स्ट, गुड। तो डिस्टेंस फर्स्ट डे सबसे ज्यादा ट्रैवल किया, देन ऑन द सेकेंड डे एंड थर्ड डे ही ट्रैवल मिनिमम डिस्टेंस। ओके बच्चों, ये तो डिस्टेंस का ऑर्डर रहा। अब डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर क्या है? डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा कौन से दिन ट्रैवल किया हुआ है? कौन सा? पहले, दूसरे, तीसरे? होता क्या डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा कौन से वाले दिन है? इन ऑल द 3 days men travel the same displacement। क्योंकि बच्चों इनिशियल एंड फाइनल तो सेम ही है। यहां से इस एग्जांपल से आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, दैट्स इट। पहले दिन जब जा रहा होगा तो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से लेकर बी तक तो यही होगा ना। सेकेंड डे भी यही होगा, थर्ड डे भी यही होगा। सो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। सो डिस्प्लेसमेंट ऑल द 3 days रिमेन सेम। बस जो वेरिएबल है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, नाउ द फोर्थ पॉइंट, इट्स बेसिकली an equation. It's basically an equation which has been asked, in which we are comparing distance and displacement. Distance is greater or equal to mod of displacement. बच्चों mod distance is scalar quantity, displacement is vector quantity. Now we cannot compare scalar and vector. अगर आपसे पूछा है 10 मीटर और 10 आई कैप मीटर को कंपेयर करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई नहीं बता सकता बच्चों। यू कैन नॉट कंपेयर स्केलर विद अ वेक्टर, बट ये तो मैंने कंपेयर कर दिया है, तो इसलिए आई प्लेस्ड अ मॉडुलस साइन, मैंने मॉड लगा दिया वहां पे। ठीक है, ताकि अब आई कैन कंपेयर। तो ये बता रहा है कि डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो ज्यादा ही होगा या उसके बराबर हो सकता है। दैट मीन्स डिस्टेंस कैन नॉट बी स्मॉलर देन द डिस्प्लेसमेंट। और इसको आईआईटी में भी इनफैक्ट और मेडिकल एंट्रेंस में भी इस तरीके से पूछा भी हुआ है। ठीक है, ये वही वाले क्वेश्चन को लिखने का तरीका है। जैसे हम देखो इसको इससे कंपेयर करो मतलब पहले वाले दिन देखो डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट के मॉड से, सेकेंड डे भी ज़्यादा है, थर्ड डे ही तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, अदरवाइज तो कौन हमेशा ज़्यादा होगा? डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अच्छा, ये इनइक्वलिटी का साइन समझ में आता है ना? इनइक्वलिटी का साइन ग्रेटर और इक्वल टू, या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। बराबर कब होगा? व्हेन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। when the particle travels in a straight line without changing the direction। अगर पार्टिकल एक सीधी लाइन पे चला जा रहा है, डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा, तो बच्चों डिस्टेंस एंड द मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। अदरवाइज हमेशा कौन ज्यादा होगा? हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है ना? अगर पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, देन द मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। अदरवाइज हमेशा डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही, फिफ्थ इज there are infinite distance between two fixed position, but there will be only one displacement. I repeat, there can be infinite distances
between two fixed position, but there will only be single value displacement. जैसे बच्चों आप अभी तो मोस्ट प्रॉब्ली सभी अपने अपने घर पे होंगे, आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहाँ पे कोई भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. आई डोंट नो, आपकी एज पे डिपेंड करता है कि आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या लगे. तो लेट्स सपोज मॉल है कोई, तो आपके घर से मॉल तक जाने के बताओ कितने तरीके हो सकते हैं? इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट. बट आपके घर से मॉल तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक ही. आपके घर से मॉल को सीधे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना? सो देयर कैन बी इनफाइनाइट डिस्टेंसेस बिटवीन टू फिक्स पोजिशन, बट देयर विल बी ओनली वन डिस्प्लेसमेंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6. अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं अभी. नाउ द डिस्टेंस और ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है, डिस्टेंस ये फिर दोबारा इनइक्वालिटी का साइन, ग्रेटर और इक्वल टू 0. ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा. ये इक्वल टू 0 कब हो सकता है? जब पार्टिकल ने ट्रैवल ही नहीं किया. आप सुबह बेड पर से उठे और वहीं पे बैठे रहे, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? 0. ठीक है, दैट इज इफ द पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट. व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 0. बच्चों डिस्प्लेसमेंट सब हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव भी हो सकता है. मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं बच्चों. इट कैन बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो सकता है, और 0 भी हो सकता है. ठीक है, जैसे बच्चों यहां से मैं आपको एक चीज और बताता हूं. अपनी वाली बात हुई थी ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की. तो लेट्स सपोज दिस इज x. ठीक है, कन्वेंशनली हम इसको x मानते हैं, तो लेट सपोज दिस इज x. दिस इज पॉजिटिव x. अगर ये पॉजिटिव x है बच्चों, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा? ये नेगेटिव x होगा. समझ में आ रहा है ना कि अगर वी हैव टेकन ईस्ट एज पॉजिटिव, तो वेस्ट तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना. तो पार्टिकल ईस्ट में ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और ईस्ट में उसने 10 मीटर ट्रैवल किया. तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 10 मीटर आई कैप. आई कैप, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कितना होता है बच्चों? बताओ यूनिट वेक्टर कितने सारे इस्तेमाल होते हैं? कितने सारे? एक. टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ओनली. ध्यान रखना ये वाली बात, मैं हमेशा ऐसे ही पूछूंगा कि बताओ मेरे बच्चों की यूनिट वेक्टर्स के कितने सारे इस्तेमाल होते हैं? कितने सारे? एक. टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ओनली. ठीक है, तो भाई साहब गए 10 मीटर ईस्ट में, तो उनका डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर आई कैप. अब वहां से वो लौटे और वो वेस्ट में 20 मीटर और चले गए. ठीक है, अगर वेस्ट में कोई 20 मीटर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -20 मीटर आई कैप. समझ में आ रहा है ना? माइनस, क्योंकि ईस्ट अगर आई कैप है तो वेस्ट क्या होगा? माइनस आई कैप होगा, नहीं होगा? ओके, तो 10 मीटर आई कैप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, -20 मीटर आई कैप नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. अब मान लो 10 मीटर गए बच्चों और वापस आ गए, जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0. अगर जहां से शुरू हुए थे घूम घुमाकर वहीं पर वापस आ गए, दैट मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज 0, क्योंकि जो इनिशियल है मेरे बच्चों वही तो फाइनल है. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. समझ में आई ये वाली चीज? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0. ठीक है, नाउ द 7th पॉइंट. Displacement in terms of position vector. क्या बच्चों ऐसा राइटिंग समझना थोड़ा टास्क लग रहा है क्या? ये पोजीशन वेक्टर मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. ये आगे चल के काम भी आएगा, और तो ध्यान रखना इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन. इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. मतलब पोजीशन वेक्टर होता क्या है? क्या होता है पोजीशन वेक्टर? जो पोजीशन बता दें. जैसे इस पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल तो ना जाने अपन कब से कर रहे हैं. घर के बाहर खेल रहे हैं. वैसे अब तो घर के बाहर कहाँ आप लोग खेलते हैं, नेटफ्लिक्स और इंस्टा में ही तो लगे रहते हैं. पर फिर भी घर के बाहर खेल रहे हैं और किसी ने आपसे कोई एड्रेस पूछा, तो हम यूजुअली क्या करके बताते हैं? हम ये बताते हैं कि अंकल या जो भी हैं कि यहाँ से ऐसे चले जाना, कि बस यहाँ ही तक तो है. ठीक है, तो
ये जो आप इससे अपनी आर्म से बताते हैं ना कि वो रहा, ठीक है, ऐसे करके कुछ बता रहे हैं, तो व्हाट दिस इज पोजीशन वेक्टर। किसका? उसका जिसका एड्रेस उन्होंने पूछा था। किसके रेस्पेक्ट में? आपके रेस्पेक्ट में। तो जो मेरे बच्चों पोजीशन बता दे वो होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इनिशियली पार्टिकल था ए पर, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो ये है पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर। r1 वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। थोड़ी देर बाद पार्टिकल बच्चों बी पर पहुंच गया, सो पोजीशन वेक्टर इज r2। किसका? r2। बी का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओ इज r2। आई रिपीट, पार्टिकल बच्चों इनिशियली कहां था? ए पर। पहुंच कहां गया? बी पर। r1 वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। r2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना बच्चों, ए टू बी एंड डायरेक्शन इज ए टू बी। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ट्राइंगल बना बना सा दिख रहा है? तो बच्चों याद आ रहा है कि कुछ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सुना सुना सा लगा कभी? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल बनाओ ना। तो ट्राइंगल, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स which are in the same order, if two vectors which are in the same order, then the third side or the closing side of the triangle in the opposite order represent the resultant। ये होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मेरे बच्चों बताओ इसमें ये सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सेम ऑर्डर का मतलब होता है एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू हुआ। वेक्टर स्टार्ट एट टेल एंड एंड्स एट हेड। तो देखकर बताओ कौन से दो वेक्टर सेम ऑर्डर में? देखो यहां से r1 स्टार्ट हुआ था, ये यहां पे r1 खत्म हुआ, ठीक है, और यहां पे खत्म हुआ तो यहां पे d शुरू हो गया। तो दे आर इन द सेम ऑर्डर, r1 एंड d आर इन द सेम ऑर्डर। देन द और द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल इन द ऑपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। तो मेरे बच्चों देखो ये थर्ड वेक्टर है ऑपोजिट ऑर्डर में भी, तो ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। सो r1 वेक्टर प्लस d वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर, और d वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। एक और बात बच्चों, r1 और r2 के कोऑर्डिनेट्स, अगर a और b के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ले लेते हैं, इसको रब कर देता हूं क्योंकि ये तो लिख चुके हैं आप। दिस x1 y1 z1, दिस x2 y2 z2, ठीक है। तो ये यहां से ना डिस्प्लेसमेंट का एक और डेफिनेशन हो सकता है, दैट इज द डिफरेंस इन द पोजीशन वेक्टर कैन आल्सो बी डिस्प्लेसमेंट। सो बच्चों r2 माइनस r1 वेक्टर क्या होगा? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, एंड z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। इसमें डाउट तो नहीं है बच्चों? मैं यहां पर ये बताऊं कि आपको कि r1 वेक्टर वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? r1 वेक्टर वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। r2 वेक्टर क्या होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है ना। i कैप j कैप k कैप तो पता ही है हमको। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हाउ वी राइट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़े अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स तो समझ में आ ही गए। सो ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। सो वी आर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि सबको समझ में आए और धीरे धीरे लेवल उसका बढ़ा देंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है बच्चों, यू हैव टू राइट द न्यूमेरिकल। वैसे मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा बच्चों। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए, a particle starts from A and along BC it reaches at point D, ठीक है। I draw the figure. Particles start from A to B, then from B to C, and from C to D, like this. Okay. Now, what is the distance and displacement traveled from A to D? बच्चों व्हाट डिस्टेंस है, मुझे पता है ये बहुत लल्लू सा प्रॉब्लम लग रहा है, हाँ एक्चुअली लल्लू है पर पहला है ना। तो बच्चों व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? डिस्टेंस होता क्या है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल। तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल कितना बच्चों?
This is the actual path, L, L, L. So the distance is 3L. While the displacement, क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन. इनिशियल कौन है? A and final is D. So this is the displacement, that is L. And the direction, अगर इसमें डायरेक्शन पूछा है तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट का? फ्रॉम A to D, that is from initial to final. क्लियर ना? फर्स्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम A to D, distance and displacement. Now second is, a particle is moving on a circular path of radius r. A particle is moving on a circle of radius r. Calculate the distance and displacement traveled. बच्चों उसके 4 पार्ट्स हैं. In 1/4 revolution, half revolution, 3/4 revolution, and 1 complete revolution. I repeat बच्चों. Particle moving on a circular path of radius r, you have to calculate the distance and displacement traveled. You have to calculate the distance and displacement traveled in 1/4 revolution, in half revolution, in 3/4 revolution, and 1 complete revolution. ठीक है? तो you want to solve it by yourself or अपन मिलकर कर लेते हैं? ठीक है? But this is A. Let's suppose A is the starting point, B quarter, C half, and D is 3/4. ठीक है? तो बच्चों फर्स्ट करते हैं. टोटल इसमें 8 आंसर आने वाले हैं. 8, 4 डिस्टेंस के और 4 डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है ना? तो 1/4 रेवोल्यूशन बच्चों, 1/4 में पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ और कहां पे पहुंचा? बी पर पहुंचा. बच्चों अगर टोटल पाथ ट्रैवल करेगा तो टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस आर कितना होता है? 2πr. तो 2πr का 1/4 कितना होगा? 2πr का 1/4 is 1/4 of 2πr is pi r by 2. So this is the distance traveled from A to B. While the displacement is the shortest distance between initial and the final position. ठीक है? ये होगा डिस्प्लेसमेंट. ना बच्चों दिस इज आर, दिस इज आर, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इट विल बी √2r. So the displacement for the part 1 is √2r. Distance is pi r by 2 while the displacement is √2r. हाफ रिवोल्यूशन. हाफ रिवोल्यूशन में बच्चों ए से स्टार्ट हुआ तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा? पार्टिकल विल रीच एट सी. तो बच्चों हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज pi r एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल ए है, फाइनल सी है, तो इसको सीधा कनेक्ट कर देंगे डायमीटर के अलोंग. सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r. सो तो बच्चों यहां पे इसका आंसर मैं लिख देता हूं. इट इज pi r. वैसे ये सभी का आ गया है एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 2r. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, 3/4 रेवोल्यूशन. 3/4 में बच्चों पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ है और डी पर आ गया. 3/4 में यहां पे आ गया. तो बच्चों टोटल सर्कमफ्रेंस कितनी है? टोटल सर्कमफ्रेंस 2πr. तो 2πr का 3/4 कितना होगा? 3/4 of 2πr. So it is 3/2πr. This is the distance traveled while the displacement. बच्चों फिर इनिशियल a है, फाइनल d है, तो this is the displacement and it is again √2r. क्योंकि ये r है, this is r, this is r, so this will be √2r. So the displacement is √2r for the third part. I repeat. बच्चों फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट का दैट इज फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू डी, डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम. बट फर्स्ट पार्ट में जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो ए टू बी होगा और थर्ड वाले पार्ट में डिस्प्लेसमेंट ए टू डी होगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन. यहां से स्टार्ट हुए हैं, वापस यहीं पर आ गए. एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया, तो बोलो डिस्टेंस कितना होगा? 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन 2πr और डिस्प्लेसमेंट इज 0. डिस्टेंस इज 2πr एक पूरा चक्कर में एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि जहां पर पहुंचे थे, जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर पहुंच गए वापस, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. क्लियर ना? सारे के सारे पार्ट्स क्लियर है? 1/4, हाफ, 3/4 और 1 कंप्लीट. नाउ द नेक्स्ट मतलब बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ऑल्दो ये एनसीईआरटी का है और ये
मैनेजमेंट एंट्रेंस में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, मतलब कैट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा मेंटल एबिलिटी पर बेस्ड है। अ मैन, आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन। अ मैन takes 5 steps forward, 3 steps backward, again 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and takes 1 second. I repeat, a man takes 5 steps forward, 3 steps backward, again 5 steps forward, 3 steps backward, and moves like this. ठीक है? Each step is 1 meter long and takes 1 second. There is a pit 11 meter away from the initial position. Pit मतलब खड्डा. There is a pit 11 meter away from the initial position. After what time men will fall in the pit? क्वेश्चन समझ में आया? एक भाई साहब हैं जो 5 स्टेप आगे चलते हैं, 3 स्टेप्स पीछे चलते हैं, फिर 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, एंड सो ऑन. ऐसे ही चलते रहते हैं. जहां से स्टार्ट हुए वहां से 11 मीटर दूर पर एक पिट है, खड्डा है. आफ्टर व्हाट टाइम मेन विल फॉल इन द पिट. ठीक है, ये एनसीईआरटी से जब क्वेश्चन लिया गया है तो वहां पे उन्होंने ड्रंकयार्ड वर्ड यूज किया गया है. ड्रंकयार्ड वाला वर्ड मैं क्लास में बोलना बहुत एंजॉय नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ ये बताया अमेन. ठीक है, तो यू वांट टू टेक टाइम टू सॉल्व इट, और चलो समझ में आ गया क्वेश्चन? तो समझ में आ गया ना? फिर मिलकर करते हैं इसको. इसमें क्या होता है बच्चों, मैं आपको इतना हिंट देता हूं, मैं पेशेंस के साथ सॉल्व करना है. आपने इसे जल्दी जल्दी में कर दिया ना तो डेफिनेटली आंसर 42, 44, 48 जाने क्या क्या सेकंड्स आएंगे. ये सारे के सारे गलत हैं, सारे के सारे गलत हैं. बहुत फंडू सा क्वेश्चन है. बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट्स सपोज x इक्वल टू 0. उनको गिराना कहां पे? x इक्वल टू 11 मीटर पे गिराना है. ठीक है, बच्चों 5 स्टेप फॉरवर्ड चले और 3 स्टेप्स बैकवर्ड आए. एक स्टेप कितना लंबा है? 1 मीटर लंबा है. और टाइम कितना लगता है? 1 सेकंड लगता है. 5 स्टेप आगे गए, 3 स्टेप पीछे आए, तो इफेक्टिवली कितना स्टेप चले? 2 स्टेप चले. ठीक है, एक स्टेप कितना था बच्चों? 1 मीटर का. तो इफेक्टिवली 2 स्टेप चले तो x इक्वल टू 2 पर ही पहुंचे. और टाइम कितना हो गया? टाइम कितना हो गया? 8 सेकंड हो गया. टाइम समझ में आ रहा है ना? 8 सेकंड हो गए. 5 स्टेप आगे चलने के 5 सेकंड, 3 स्टेप पीछे आने में 3 सेकंड, 8 सेकंड हो गए. पर वो पहुंचे कहां है? अभी x इक्वल टू 2 पर पहुंचे. फिर वो 5 स्टेप्स आगे चले और 3 स्टेप्स पीछे आए तो x इक्वल टू 4 पे पहुंचे. 8 सेकंड और हो गए. क्लियर है ना बच्चों? 5 आगे चले, 3 पीछे आए, x इक्वल टू 4 पे आए, 8 सेकंड और हो गए. फिर बच्चों 5 स्टेप आगे चले और 3 स्टेप पीछे आए तो x इक्वल टू 6 पर आए, 8 सेकंड और हो गए. यहां तक क्वेश्चन क्लियर है क्या? कि बच्चों x इक्वल टू 6 पर पहुंचे हैं और 24 सेकंड हो चुके हैं. 24 सेकंड हो चुके हैं. ठीक है, अब वो 5 स्टेप्स आगे जाएंगे और 3 स्टेप्स पीछे नहीं आ पाएंगे. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन द न्यूमेरिकल. क्योंकि जैसे ही वो बच्चों 5 स्टेप आगे जाएंगे वैसे ही गिर जाएंगे. ठीक है, पीछे तो बच्चों ड्रंकयार्ड है ना, तो सुबह आ पाएंगे जब हालात नॉर्मल हो पाएंगे तब. ठीक है, तो ये +5. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली जनता करती क्या है इसमें कि बच्चों, जैसे मैंने कहा ना कि पेशेंस लूज नहीं करना है. ये तो खैर ओवरऑल फिजिक्स में ही ध्यान रखना है, पेशेंस तो कभी लूज ही नहीं करना है. इस वाले न्यूमेरिकल में सोचो, अगर पेशेंस लूज कर दिया ना तो आप इस भाई साहब के साथ बहुत बुरा कर रहे हो. आप कर क्या रहे हो? x इक्वल टू 6 के बाद फिर 5 स्टेप्स आगे चलाओगे, फिर पीछे लेकर आओगे तो x इक्वल टू 8 पर पहुंचाओगे, फिर x इक्वल टू 10 पर पहुंचाओगे, फिर गिराओगे. आंसर गलत ही आना है. क्योंकि समझ में आ रहा है ना, x इक्वल टू 6 पर पहुंचे. एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं, वो तो यहां तक का न्यूमेरिकल यहां तक का क्लियर है ना कि x इक्वल टू 6 तक पहुंच चुके हैं और 24 सेकंड हुए हैं. x इक्वल टू 6 तक पहुंच चुके हैं. अब वो जैसे ही 5 स्टेप्स फॉरवर्ड चलेंगे ना, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड चलेंगे तो बच्चों द पिट इज एट x इक्वल टू 11, तो इसमें गिर जाएंगे. तो यहां पर फिर 8 ऐड नहीं करना है. x इक्वल टू 6 से x इक्वल टू 11 तक 5 स्टेप्स चलने में उनको लगते हैं 5 ही सेकंड. 5 स्टेप बाद वो गिर जाएंगे. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 29 सेकंड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 5 सेकंड वाला. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अपन नेक्स्ट क्लास में इसके बाद आगे और न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और करेंगे. अच्छे से वाला लेक्चर रिवाइज करना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.